Hello dear students, very good afternoon to everyone. I hope you all are in a good health and you are doing your studies very nicely, okay? So in the last few classes I have discussed about permutation, okay? Regarding all the concepts and problems of the topic permutation. So today I am going to discuss about what? Combination, okay? So in the first class, in the first lecture, I have distinguished between what is permutation and what is combination, okay? So again I remind you, permutation is what? It is nothing but an arrangement where order is very important, and in combination what? It is a selection only. It is a selection, order is not important. ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके? जैसे सपोज दैट देयर आर 3 पर्सन A, B and C. There are 3 person, okay? And from these 2 person you are going to select what? 2 person, okay? From these 3 person you are going to select what? 3 person. I'm sorry, from these 3 person you are going to select what? 2 person. तो कैसे आप सिलेक्शन करेंगे? क्या क्या सिलेक्शन हो सकता है? ठीक है, सो दिस इज ए पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज ए पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज ए पर्टिकुलर पर्सन. अमॉन्ग 3 डिफरेंट पर्सन यू आर टू सिलेक्ट 2 पर्सन. आपका कुछ काम है, जैसे आप कोई कमेटी बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो सब, ठीक है? तो ये फ्रॉम दिस 3 पर्सन यू आर टू गोइंग टू सेलेक्ट 2 पर्सन इन हाउ मेनी वेज. क्या क्या सिलेक्शन हो सकता है? आप थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे. सिलेक्शन विल बी दैट इज दिस सिलेक्शन विल बी AB और BC or what? SE. These are the selection, okay? If you think that if I say BA, then what? CB, then what? CA, okay? हमें 2 पर्सन चाहिए. हमें मतलब नहीं कौन आगे है कौन पीछे है. फर्स्ट which one is selected and next second one is selected. कौन किसको पहले सिलेक्ट किया और किसको सेकंड सिलेक्ट किया, ये मतलब नहीं है. सो these are the from 3 person selection of 2 person, selection of AB और BA सेम मीनिंग. दोनों का दोनों मिलके एक ही बात हो रहा है. मीनिंग क्या है? सेम. दिस 2 आर ऑफ सेम मीनिंग, ओके? दिस आर दी 2 पर्सन एंड दिस आर ऑल्सो सेम 2 पर्सन, ओके? इसमें कोई आगे है कोई पीछे है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंस. तो सिलेक्शन में क्या है? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हियर ऑर्डर इज AB एंड BA आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, हमें जस्ट सिलेक्शन चाहिए. हमें 2 पर्सन चाहिए. दिस 2 पर्सन, someone will be first and someone will be second, okay? तो इसमें कौन फर्स्ट हो रहा है कौन सेकंड में सेलेक्ट हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता. दैट्स वाई दिस पार्ट इज रिजेक्टेड. ये पार्ट को क्या है? कॉम्बिनेशन से रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है. तो हमें कितना सिलेक्शन होगा? टोटल सिलेक्शन होगा 3. लेकिन परमुटेशन की बात करें तो क्या होगा? रिजल्ट, टोटल रिजल्ट क्या होगा? दिस प्लस दिस 6 हो जाएगा, ओके? एंड परमुटेशन में हम क्या कहते हैं? दिस इज 3p2. 3p2 इज इक्वल टू व्हाट? 3p2 is equal to what? From 3 person, and that is 2 person arrangement of 2 person is how many ways? 6 ways. It is called what? 6. Result is 6. And from 3 person you are to select 2 person. It is symbolized at 3C2. It is called combination, and it is called what? Permutation. That means combination of 3 person taken 2 at a time. And is called permutation of 3 person taken 2 at a time. Taken 2 at a time is result what? 6. And there is combination of 3 person taken 2 at a time is what? 3. Okay, there is a definitely a relation between 6 and 3. Yes or no? Relation between 6 and 3 is there. And also you know that NPR is equal to what? What is the formula? NPR is equal to what? Factorial N divided by factorial what? N minus R. This is the result of NPR, okay? Understood? And using this you can write this is equal to what? Factorial what? 3 divided by factorial what? 3 minus 2, and which is equal to what? 6. 3 minus 2 is equal to what? 3 minus 2 equal to what? 1. 1 factorial is equal to 1, and factorial 3 equal to what? 6. Understood? Okay? Now I am going to create a connection between this and this. Okay. 3C2 equal to what? 3, which can be written as what? 6 by 3. 6 by what? 2. Can I write this? There will be no problem, okay?
and 6 is equal to what? What is 6 actually? 6 is equal to what? Factorial 3. Factorial 3 divided by what? 3 minus 2 factorial. Divided by what? 2 तो है हमें. This is the equality, okay? And from this you can develop. It is equal to what? Which is equal to 3c2 is equal to क्या मिल रहा है? Factorial 3 divided by 2 into factorial 3 minus 2 मिल रहा है कि नहीं हमें? कैन आई दिस ये नाउ ये जो फिगर है नीचे आ जाएगी, ठीक है? सिंपल कैलकुलेशन which is equal to we can write factorial 3 divided by is 2 can be written as factorial 2 into 3 minus factorial 2. Can I write this? So ultimately what we get, combination of 3 different person taken 2 at a time is equal to factorial 3 divided by this. ये suffix क्या है? देखो suffix में क्या है? 2 है, तो इसमें क्या हो रहा है? factorial 2 into 3 minus 2 factorial. Okay, so you can, if you generalize this result, this is your NPR. Okay, generalize the result, you see very interesting. So if I say suppose 6C3, that means what? Suppose there are 6 person is there. From 6 person you are to select 3 person, okay? Or you can say permutation combination of 6 person taken 3 at a time. 3 at a time is equal to what? सेम पैटर्न में अगर हम लिखेंगे तो ये किसे लिख सकता हूँ? इसमें 3 था तो 3 फैक्टोरियल, इसमें 6 है तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट? क्या होगा? इसमें 2 था सो 2 फैक्टोरियल. सिंस दिस इज 3 सो यू कैन राइट 3 फैक्टोरियल इनटू व्हाट? 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके, सो इन दिस वे इफ यू यूज NCR, NCR means what? Suppose that there are n different objects, okay, or you can say there are n different person. You are to select R person, or you can say combination of n different objects. If you say n denote number of objects, combination of n different objects taken R at a time can be, क्या होगा? उस पैटर्न से लिखिए. तो इसमें n है तो n फैक्टोरियल होगा, इसमें 3 फैक्टोरियल आ गया बिकॉज ऑफ दिस, सो इसमें क्या आएगी? फैक्टोरियल r आएगी. एंड सिंस दिस 6 माइनस 3 इट बी n माइनस r फैक्टोरियल. दिस इज द रिजल्ट फॉर NCR. दिस इज द रिजल्ट फॉर व्हाट? NCR. ठीक है. NPR का रिजल्ट क्या है? NPR का रिजल्ट इज व्हाट? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r. This is the result of what? NPR. It is written as combination of n different objects taken R at a time, and it is written as permutation of n different objects taken R at a time. ठीक है. इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? R फैक्टोरियल क्या है? मल्टीप्लाइड है. तो हाउ टू मेक द रिलेशन बिटवीन NCR and NPR? So from this you can write, from this particular result you see, you can write 1 by factorial r बाहर रख के आप लिख सकते हो n factorial by n minus r factorial. ये सब मिला के क्या लिख सकते हो? It will be equal to what? NPR. It will be what? Equal to what? NPR. So NCR equal to what? 1 by factorial r into NPR. Or from here you can write NPR equal to, so ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल r इंटू वाट? मल्टीप्लाई लिखो NCR. दिस इज अ वेरी यूजफुल रिजल्ट. ओके, अगेन वी डेवलप a very nice result. Okay, understood? This is the relation between NPR and NCR. So what is the how to read it? It is called, and there is a n different combination of n different objects taken R at a time, or you can say from n different object selection of R objects. It is called from n different objects arrangement of n different objects
arranged in r places. Okay, or you can say permutation of n different objects are taken r at a time. So ये आपको पता है, तो ये NCR और NPR के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है. एंड दिस इज द यूजफुल रिजल्ट NCER. NCR इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल n divided by factorial r into factorial n minus r. Before going to discuss more about NCR, okay, let us one important particular, that is result I am going to discuss. Okay, what about factorial 0? So, important factorial 0 क्या है? फैक्टोरियल 0 के बारे में हमें क्या है निकालना है. वी नो दैट NPN इज इक्वल टू व्हाट, हमें क्या पता है, NPN इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल n. हमें पता है कि नहीं, NPN इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल n. इफ यू expand left hand side, it will be factorial n by using this result. Okay, using this result, this it will be what, factorial n minus n equal to what, factorial n. So factorial n, here factorial n ये क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, because it is the product of first n natural number. Okay, it is the product of what, first n natural number. So from here you can write factorial n divided by factorial 0 equal to what, factorial n, and you can write factorial n equal to factorial 0 into factorial n after cross multiplying. This is a non-zero quantity, this is a non-zero quantity, इसको कैंसिल कर सकते हो. So this is 1 equal to factorial 0. So हमें अल्टीमेटली क्या मिला, factorial 0 equal to what, 1. ठीक है, this is a very useful result. We are going to apply it. Okay, factorial 0 equal to what, 1. Sometimes may question asks, prove that factorial 0 equal to what, 1. So you can prove it in this manner. Okay, this is the summary of the discussion. Okay, number of combinations of n different objects. N different objects taken r at a time is denoted by the symbol NCR. And what is the definition of NCR? NCR is equal to what, factorial n divided by factorial r into factorial n minus r. Okay, it is called combinations of n different objects taken r at a time. Or you can say that from n different objects, selection of r objects, selection of what, r objects. ठीक है, and we have already proved that factorial 0 is equal to what, 1. Okay, and also we have shown that there is a relation between NPR and NCR. NPR is equal to what, factorial r into NCR. Okay, and if r is equal to n, okay, in this, because in NCR what happen, NCR में क्या हो सकता है, इसमें एक रिलेशन होता है 0 लेस देन इक्वल देन r लेस देन इक्वल देन व्हाट, n. r का वैल्यू 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम क्या होगा, n होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो पुटिंग r इज इक्वल टू n इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, यू गेट NCN, एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस n. तो अल्टीमेटली इट बिकम्स फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसल, इट बिकम्स 1 बाई n माइनस n मीन्स व्हाट, फैक्टोरियल 0. फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, n 1 है. दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ n different objects taken all at a time, selection of n different objects taken all at a time is equal to what, 1 ही होगा. जैसे 3 पर्सन हो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, 3 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन को सबको अगर सिलेक्ट कर ले एक साथ सिलेक्ट कर ले, तो रिजल्ट क्या होगा, एक ही सिलेक्शन होगा, दैट इज ABC, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगर ABC है या BSC है, PSC और CAB, वट एवर बी, सो दिस ऑल मीन वन, only one. Okay, the particular selection is what, this is one selection, this other selection, this is another selection. No, it is not correct. Selection में order का कोई question नहीं होता, so there will be only one selection. सबको एक साथ अगर 10 पर्सन है आपके सामने, सबको सिलेक्ट कर लेना है, तो 10 को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, तो व्हाट इज द सिलेक्शन, देयर विल बी वन सिलेक्शन. ओके, दैट्स व्हाई कॉल्ड n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 1. ठीक है, नाउ देन इफ r इक्वल टू व्हाट, 1 होने से क्या हो रहा है, देन इट इज NC1. NC1 क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1
into factorial n minus 1. I am putting the value of r in this result. Okay. Now factorial 1 क्या है, 1 है, and this n factorial and n minus 1 factorial, ये दोनों के बीच n minus 1 n factorial is greater. तो वहाँ से फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल से अगर n बाहर करेंगे, अंदर क्या रहेगा, n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. Okay, so these two cancel, result is equal to what, n. Result is equal to what, n. So nc1 equal to what, n. If r is equal to 2, then what happen, nc2. nc2 सेम फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन दिस पर्टिकुलर मेन रिजल्ट. ओके, तो इसमें फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल n माइनस 2, उसको एक्सपांड कर सकता हूँ. इफ़ आई एक्सपांड इट, n बाहर करे तो अंदर में क्या रहेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल. फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या है, n माइनस 2 से बड़ा है, तो फिर n माइनस 1 बाहर करें तो अंदर में क्या रहेगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, फैक्टोरियल 2 इज़ व्हाट, 2, और एक से फैक्टोरियल जैसे है, फैक्टोरियल 2 रख दो, और n माइनस 2 तो है, n माइनस 2 फैक्टोरियल. सो दिस वन दैट वन व्हाट कैंसल, एंड फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट, you will get n into n minus 1 by factorial. Very important result. This is my interest of the discussion. Okay, very important. So how to get nc2? आपको इतना सारे कैलकुलेशन करने के बाद वो रिजल्ट मिल रहा है, आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, nc2 इक्वल टू व्हाट, सिंस देयर आर 2, सफिक्स में क्या है, 2 है, तो आप ऊपर में कितना फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर मल्टीप्लाइंग 2 फैक्टर. सफिक्स इज 2, you are multiplying what, 2 factor. First factor is n and then next consecutive factor. Okay, divided by what, factorial 2. So I take an example. You see, take an example, will be get into very interesting. Okay, you see, for suppose that you are going to find 4c2. तो 4c2 में क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा, ऊपर में क्या होगा, n इंटू एन 4, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 3. सो डायरेक्ट लेंगे 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2. ठीक है, फैक्टोरियल 2. तो वहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, इफ n इज इक्वल टू व्हाट, सपोज n इज इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट इज सपोज n इज इक्वल टू 3, इफ n इज इक्वल टू व्हाट, 3, तो आपको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ड्राइवेशन कर ले. इफ n इज इक्वल टू 3 इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट NCR में पुट कीजिए, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी nc3 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3. तो उसको अगर थोड़ा सा एक्सपांशन करें, बिकॉज n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n माइनस, फर्स्ट यू आउट n, देन n माइनस 1, देन n माइनस 2, एंड देन इट विल बी n माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके, डिवाइड बाय व्हाट, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्या है, फैक्टोरियल 3 है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड फाइनली यू विल गेट, फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट, n into n minus 1 into n minus 2 divided by what, factorial 3. I hope you understand. Now you see here suffix is what, 3, so denominator is what, factorial 3, and numerator is what, product of 3 consecutive factors. So this is n minus 1 next, and then next. If it is 5, then it is 4, and then what, suppose 3. So for example, you are to find 7c3, आपको 7c3 निकालना है, तो यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला. इस फार्मूला में प्लॉट करेंगे, फैक्टोरियल एक्सपांड करेंगे, आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो आप यूज़ करेंगे कैसे, नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 3, ऊपर में क्या होगा, 7, देन व्हाट, नेक्स्ट नंबर 6, देन व्हाट, नेक्स्ट 5, एंड फैक्टोरियल 3 इज व्हाट, 6. ओके, 7 इंटू 6 इंटू व्हाट, 5, and 6 cancel, your answer is what, 35. So very easily you can calculate this type of results. Okay, so these are the few important results I have discussed. Okay, so which will be very useful, like how to find NC3 or NC2 or NC4. Okay, very useful. Okay, now I am going to discuss the properties of NCR. Okay, very useful property which will be applicable in solving the questions. Okay, so first property is property number 1,
Property number 1 is if n 0 less than equal than r less than n, then nc r equal to what? nc n minus r. ठीक है, आप कर सकते हैं. तो you see, you can take any of these sides. Suppose you take right hand side. Right hand side is what? nc n minus r equal to, by using the formula here your basic formula is what? ncr. okay, r के जगह में क्या है? n minus r है. तो स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर. आर की जगह में क्या आएगा? n माइनस आर आएगा इंटू n माइनस व्हाट? n माइनस दिस. तो n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल. ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n. ये तो n माइनस आर है and this n cancel, it becomes what? Factorial r, and which is equal to nothing but our NCR. And what it is? Our NCR. Okay, which is equal to what? NCR. So what we get? NCR equal to what? NC n minus r. How to use this? Where you have to use this particular result? This is very, very important. For example, suppose that you are going to find, suppose 17 C, suppose 15. If the suffix is in higher number, suffix are what? In higher number, almost near to what? The upper suffix. जो upper में जो suffix है, उस suffix से ये lower suffix क्या है? नज़दीक है. और lower suffix क्या है? बड़ा है. 17 का 15%. Suppose I am taking suppose is 16. Okay, then it will understand better. 16 का 50% क्या है? 8 है. So अगर suffix में 50% से ज़्यादा बड़ा है नंबर, सपोज 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, जैसे 15 हो, तो इन सच केसेस व्हाट हैपन? यू विल यूज दिस रिजल्ट टू रिड्यूस सफिक्स. सफिक्स को क्या करना है? छोटा करना है. तो आप क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 16 बाय फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. ठीक है, तो ऊपर में तो n रहेगा, C n माइनस आर मीन्स वाट? 16 माइनस 15 क्या होगा? 1 हो जाएगा. अभी इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, बिकॉज NC1 आपको रिजल्ट दिया था मैंने. NC1 क्या है? n है, तो 16C1 क्या है? 16 होगा. जैसे अगर आपको कहे यू आर टू फाइंड 17C सपोज 14, तो आप ये बहुत मुश्किल होगा. आप पूरा फार्मूला में पुट करेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन करें, लंबा हो जाएगी प्रॉब्लम. तो आप क्या करेंगे? 17C3 लिख सकते हो. 17 माइनस 14 क्या है? 3 है. अगर सफिक्स 3 है तो नीचे क्या होता है? फैक्टोरियल 3 होती है. ऊपर में क्या? 17 देन 16 देन व्हाट? 15. इसके बाद आप कैलकुलेशन करो, आपका रिजल्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ द यूजफुलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ठीक है, कब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? व्हेन द सफिक्स इज ए लार्जर नंबर. ये बड़ा नंबर है. ठीक है, 50% ऑफ अपर सफिक्स से 50% ज़्यादा है तब यूज़ करना. अगर यहाँ में सपोज हो गया सपोज 7, तो आप इसके यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं. 16 माइनस 7 क्या होगा? 9 होगा. तो आप ये तो और बड़ा हो गया, तो आप यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं. इसीलिए 50% से ज़्यादा हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करके लोअर सफिक्स को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे. ठीक है, दिस इज द वन प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 2. नंबर 2 प्रॉपर्टी इज इफ NCX इज इक्वल टू NCY, ये अगर दोनों इक्वल हो, then implies either x is equal to y or x not equal to y. Means what? x not equal to y मत लिखिए. x plus y equal to what? n. समझ में आ रहा है? There are two cases. If x and y दोनों सेम हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा? दोनों इक्वल होगा. जैसे 4C2 इज इक्वल टू वाट? 4C2. ये दोनों क्या है? इक्वल है, बिकॉज 2 इक्वल टू 2. समझ में आ रहा है? हमने कैसे ये n लगा दे इसमें n, तो NC2 इक्वल टू NC2. NCX इज इक्वल टू NCY. वन केस इज वाट?
x मस्ट बी इक्वल टू व्हाट y। ये x और y एक सेम हो, लोअर सफिक्स सेम हो तो दोनों रिजल्ट इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है, ठीक है, इसमें प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। एंड अदर केस इज दैट इफ़ दे आर नॉट इक्वल, जैसे x का वैल्यू सपोज हो गया 3 एंड y का वैल्यू सपोज हो गया 5, देन व्हेन NC2, मैं कहना चाहता हूँ व्हेन NC2 इक्वल टू NC5 कब होगा, कब होगा, अंडरस्टूड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ओके। So here you see if x is equal to y, then result is true. Result is true, okay. From this particular result you see NCR is equal to NCN minus R, okay. ये जो सफिक्स है, दिस सफिक्स एंड दिस सफिक्स, दोनों का सम क्या हो रहा है, आर प्लस एन माइनस आर, क्या हो रहा है, इक्वल टू व्हाट, एन। ये सुनो, ये बोथ आर इक्वल, दोनों अगर इक्वल है, ऊपर में तो एन है, दोनों अगर इक्वल है तो सफिक्स का सम क्या होना चाहिए, एन ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। सो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन रिजल्ट इज ट्रू, एंड अगेन एन सी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एन सी वाई इम्प्लाइज क्या होगा, उस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे, n इज व्हाट सेम, सो x में x, इसमें r इज इक्वल टू व्हाट x एंड n माइनस r इज इक्वल टू व्हाट y, एंड दोनों का सम क्या हो रहा है, इसमें दोनों का सम क्या हो रहा है, n हो रहा है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से x प्लस y इक्वल टू व्हाट n, x प्लस y इक्वल टू व्हाट n। होप दैट यू अंडरस्टैंड, क्लियर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दोनों अगर सफिक्स इक्वल ना हो, दिस x एंड y नॉट इक्वल, देन दोनों का सम क्या होगा, n हो जाएगी, दोनों का सम क्या हो जाएगी, n हो, बिकॉज ऑफ दिस ये r एंड n माइनस r दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों क्या है, r इज नॉट इक्वल टू व्हाट, r माइनस n माइनस r, ओके। यस, नॉट इक्वल टू व्हाट, एन माइनस, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का सम क्या है, आर प्लस एन माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट, एन, ठीक है। तो उस रिजल्ट को मैंने अप्लाई किया है, दिस इज इक्वल टू दिस, इम्प्लाइड सफिक्स आर, सम ऑफ द सफिक्स इज इक्वल टू व्हाट, एन, सिमिलरली एन एक्स इज एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, इम्प्लाइड एक्स प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, एन। दिस इज द प्रॉपर्टी, आवर मेन जॉब इज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी में, ठीक है। This is the property 3. It is very important. Sometimes it will comes in examination that prove that this is equal to this. So this is a property. What is the property, NCR? NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. कैसे इसको यूज़ करें, जैसे suppose that 3C2 plus 3C1, ठीक है, ये R and R minus 1 क्या है, दोनों consecutive numbers है। If it is 3, if it is 2 then it is 2 minus 1 is equal to what, 1, ठीक है। ऊपर में दोनों का n है तो इसको लिख सकते हो आप 3 plus 1 मीन 4C2, इसका रिजल्ट क्या होगा, 4C2 लिख सकते हो। n plus 1 मीन्स व्हाट, 3 plus 1 CR, बड़ा जो नंबर है ये दोनों में सफिक्स में बड़ा क्या है, r है, तो r को आप सफिक्स में लगाएंगे, ठीक है। लाइक वाइज सपोज 5C3 5C2 क्या होगा, 6C3, दिस इज द एप्लीकेशन, ओके। इन दिस वे यू कैन अप्लाई इन प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट, ये क्या होती है एग्जाम में कभी कभी ये प्रूफ आती है, दिस वाई प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। एक बार प्रूफ कर ले, लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए पहले, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो हम NCR का फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे। NCR का क्या है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। दीज आर द सिंपल दस डेफिनेशन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय व्हाट, r के जगह में क्या है, r माइनस 1 है, तो आप लिख सकते हो r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू
n माइनस दिस, उसका माइनस करेंगे क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज समथिंग हियर. दिस r फैक्टोरियल एंड दिस r माइनस फैक्टोरियल, दोनों में कौन सा बड़ा है? वेरी वेरी केयरफुल. r फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन r माइनस 1 फैक्टोरियल. इफ इट इज़ 3 देन इट इज़ 2. कंसेक्यूटिव है तो r अगर बाहर करेंगे नीचे, यू सी, इफ आई पिक अप r आउटसाइड द फैक्टोरियल, देन इनसाइड क्या होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड इट इज़ व्हाट, n माइनस r फैक्टोरियल. तो है इनटू व्हाट, n फैक्टोरियल. ऊपर में क्या है, n फैक्टोरियल है, तो नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल, डोंट नो नीड टू चेंज, इट विल बी r माइनस 1. ओके, r माइनस 1 फैक्टोरियल. नाउ बिटवीन n माइनस r फैक्टोरियल एंड n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, जैसे अगर इफ़ यू सपोज दैट n माइनस r इज इक्वल टू 5, देन इट इज़ 5 प्लस 1, दैट मीन्स व्हाट हैपन, ये 1 बड़ा है, दैट मीन इट इज़ ग्रेटर देन दिस. ओके, दैट्स वाई यू कैन एक्सपांड दिस, बड़ा वाला को एक्सपांड करना है. तो n माइनस r प्लस 1 बाहर करेंगे तो अंदर में क्या रहेगा, 1 तो बाहर कर दिया तो 1 रिड्यूस होगा, तो अंदर में क्या होगा, n माइनस r फैक्टोरियल. ये सारे हमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, फैक्टोरियल का जो प्रॉपर्टीज़ हमें मिला था ये सारी यूज़ किया है. नाउ n फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर, तो n फैक्टोरियल कॉमन आएगा. फिर नीचे क्या हो रहा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी कॉमन आएगा. n माइनस r फैक्टोरियल, ये भी कॉमन आएगा. तो लेट अस टेक कॉमन दिस, तो सारे इसको कॉमन करें, विच इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल बाहर करो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या क्या हो रहा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल इज टेकन कॉमन एंड देन n माइनस r फैक्टोरियल, ये n माइनस r फैक्टोरियल क्या होगा, कॉमन होगा, n माइनस r फैक्टोरियल टेकन कॉमन. एंड व्हाट विल बी रिमेन इनसाइड इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, ये सारी टर्म को हमने कॉमन ले लिया, 1 बाई r रहेगा, 1 बाई r प्लस इसमें क्या होगा, ये 1 बाई n माइनस r प्लस 1. ठीक है, ये रहेगा. तो इसमें क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई व्हाट, फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. सिर्फ कैलकुलेशन. नाउ टेक एलसीएम हियर, उसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, r इंटू n माइनस r प्लस 1 एंड इसमें क्या होगा, n माइनस r प्लस 1 माई प्लस r. ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम देन सम कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड. सो फैक्टोरियल n divided by what, r minus 1 factorial into n minus r factorial. What will be the denominator, this r cancel, it will be n plus 1 and this is what, r into n minus r plus 1. Okay, these are the very very interesting results. Okay, now see, little arrangement is required. What we will do, ये r n r माइनस 1 इसमें फैक्टोरियल है. ठीक है, r माइनस 1 क्या होगा, फैक्टोरियल. ओके, दिस r n r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, r n r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ, क्योंकि हमें सपोज दैट 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है, इक्वल टू व्हाट, 6 फैक्टोरियल. बताए कि नहीं, बिकॉज 6 बाहर कर, 6 अगर इनसाइड ले जाए तो 6 फैक्टोरियल, 6 अगर बाहर करेंगे तो अंदर में क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा. ठीक है, लाइक वाइज r factorial is equal to what, r into r minus 1 factorial. Yes or no? So this particular result can be written as what, r factorial. लिख सकता हूँ r factorial. So दोनों मिला के हम क्या लिखेंगे, नीचे ऊपर में क्या हो रहा है, n plus 1 into n factorial. Okay, and this r into r minus 1 means r factorial. And now ये दोनों के बीच क्या रिलेशन बना सकता हूँ, n minus r plus 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, हमें पता है कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस आर प्लस 1 अगर बाहर करेंगे तो अंदर में 1 रिड्यूस होगा, क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल. सो दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस वन. लिख सकता हूँ कि नहीं, दिस वन एंड दिस वन आर सेम. सो ये दोनों मिला के हम क्या लिख सकता हूँ, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, we can write it.
Then in numerator you see n plus 1 into n factorial. Very interesting, you see n plus 1 factorial क्या होगा, n plus 1 factorial is equal to, और n plus 1 बाहर करेंगे तो अंदर में 1 रिड्यूस होके क्या होगा, n factorial होगा. तो this result can be written as this one. So numerator can be written as n plus 1 factorial, ठीक है, divided by r factorial, and this one can be little bit arrangement is required, n plus 1 minus r factorial, ठीक है, n plus 1 minus r factorial. Now let us see what is n plus 1 cr. What is n plus 1 cr? उसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपांड करें, NCR का फॉर्मूला, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, n plus 1 फैक्टोरियल होगा, नीचे क्या होगा, r फैक्टोरियल होगा, देन दिस माइनस दिस, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा कि नहीं. This is the expansion of this result. Now this result and this result are what? Same. So you can write this is equal to what? n plus 1 cr. So which equal to what? n plus 1 cr. And which is equal to what? Right hand side. Hence proved. Okay? These are the useful properties I have discussed in today's class, and I hope you understand. Okay? So regarding this, we have discussed about what is combination and what are the formula of combination, and how we deduce the formula of combination is NCR is equal to what? Factorial n divided by factorial r into factorial n minus r. And then we have discussed about some properties of NCR. Okay? And also about there is a few how to find out the value of some result like NC what suppose NCR. Okay, ये इस टाइप का रिजल्ट जैसे कैसे निकालते हैं, जैसे R का वैल्यू अगर 0 हो, R का वैल्यू अगर 1 हो, R का वैल्यू अगर n हो, व्हाट इज R? इफ R इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0. ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n. ओके, दोनों कैंसिल, फैक्टोरियल 0 क्या है, 1 है तो 1 है, nc0 इज ऑल्सो 1, nc0 is also 1, nc1, nc2, and then we get about ncr is equal to ncn minus r. Then we get ncx is equal to ncy, implies either x is equal to y or sum of the suffix x plus y equal to what, n. And then a very important property, I have used the NCR plus NCR minus 1 equal to what, n plus 1 CR. So these are the properties I have used. The next class I will solve directly questions related to this particular all important concept. Okay, hope that you understand the class, and if you understand my class, please share my videos to all your friends so that everyone can be benefited. And those who have not सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए. ठीक है, I give my all the best effort to make you the subject interesting among you.